স্পেশালি কিছু কোয়েশ্চেন আনসার যদি আপনাদের থাকে সেইগুলো অ্যাড্রেস করবেন হচ্ছে আমাদের শেফ সঞ্জয়। So without further delay, chef, handing in the entire session to you, you can take over. Sure. Hi, am I audible and visible? Yeah, chef, you're audible and we can see you. Alright, Namaskar. After a long time getting in touch with the Eastern crowd today, I believe we are with Shashwati group, correct? Yes. Shashwati and Kirtita both are present, I think. Oh, great. So, good afternoon, everyone, and welcome. Uh, Kumar, I think, has explained most of it. A lot of it I couldn't understand because he was speaking in Bengali. My Bengali is pretty weak, but I could understand that he told me exactly what the product can do, what the utensils can do. I think he spoke about the lid, which is the OptiTemp temperature के बारे में बताया, and he also told me about the lid, which is how it works basically, so that your food remains, your goodness of the food remains intact, and all the nutrition which is there stays inside. So in this case, what I'll do, since he already explained this, let's get into some recipes. Eastern recipe mostly based out of West Bengal, Calcutta. Uh, a basic gravy recipe that one would make over there would be of onion, tomatoes, ginger, garlic. This is your base. Most of the country does it that way. But in Calcutta, I've seen the base is normally onion, tomatoes, ginger, garlic. This is your basic gravy. In some gravies, which you all call shahi, so and so, shahi. संजय जी, हाँ जी. जस्ट मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा आप अगर हिंदी भी ऐड करेंगे तो इजियर। अरे हाँ, मतलब इसमें है तो मोस्ट थोड़ा सा हिंदी मिक्स करें, राइट? नहीं, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दूँगा। ठीक है। तो जैसे शाही कोरमा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर काजू भी चले जाता है, होता है। There is a lot of people who ask me कि ऐसा कोई रेसिपी बताइए जो हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, so that we can store the recipe, store the masala, and we can use it for different making different recipes. So this is one of the recipes. If you have a paper pencil, you can use, or later Kumar can just write it. So we take about I'm giving you a recipe for approximately 1 kg of masala. So 700 grams of onion, which is chopped, and 300 grams of tomato. Now, in case if you want more tomatoes, please go ahead and add more tomato. And ginger garlic paste as per your requirement, or ginger garlic pieces as per your requirement. Because हम लोग उसको वैसे भी खाते पीसने वाले. तो ये ले करके आप अनियन 700 ग्राम्स काट लीजिए, टमाटो काट लीजिए 300 ग्राम्स, अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट 70 ग्राम से 100 ग्राम, विच इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दैट, दोनों को मिक्स करके इसको आप मीट के किसी भी एक पॉट में डाल दीजिए, प्रेफरेबली द स्टॉक पॉट. स्टॉक पॉट होल्ड्स इट मच बेटर बिकॉज़ ज्यादा माल रख सकता है. इसके अंदर डाल करके 3-4 चम्मच पानी डाल करके आप ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम से स्टार्ट करेंगे फॉर अबाउट 30-40 सेकंड्स, सो दैट जो बर्तन है वो एक बार गर्म हो जाए. एक बार बर्तन गर्म हो गया, देन यू जस्ट पुट इट ऑन लो फ्लेम एंड यू लेट दिस फॉर अबाउट 35-45 मिनट्स. आई कुक इट फॉर अबाउट 45 मिनट्स. एकदम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एकदम वो पल्पी हो जाता है. उसको निकाल करके ठंडा करना जरूरी है. ठंडा करके आफ्टर दैट यू मेक अ पेस्ट आउट. तो आपका एक मसाला तैयार हो गया, दैट इज योर पेस्ट. नाउ यू वांट टू मेक फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, बिकॉज़ मैं किसी घर पे भी कलकत्ता गया था जस्ट बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड दिस इज व्हाट दे हैड डन. सो दिस वाज द मसाला दैट दे हैड यूज्ड. फिर इन्होंने फ्रीज करके नहीं रखा, they made it fresh. There was ginger garlic, there was onion, tomato का paste, all mixed together with. उसको लिया, थोड़ा सा तेल डाला उसमें, और because it was fresh, to cook it more, but we already cooked it. हमने पहले से पका के रखा. तो थोड़ा सा पेस्ट डाल करके इसका मिक्सचर का उसके अंदर थोड़ा हल्दी डाल कर, हरा धनिया, ग्रीन चिली डाल करके थोड़ा सा उसको मिक्स कर दिया, एंड थोड़ा हल्दी mixed it and put the prawns, and then and the prawn there. So
ये मसाले के साथ में आप बाद में इसके अंदर कोई भी सूखा मसाला, गरम मसाला you can add. So if you want to add some garam masala, you just take the garam masala, the any of the pans and toast it. So you don't have to put oil. आपको oil डालने का जरूरत नहीं. उसको थोड़ी देर के लिए गरम उसके ऊपर कर दिया, उसका फ्लेवर उसके अंदर जो ऑयल है वो आगे डाल दीजिए. And anything, कोई चिकन मटन whatever हमारे घर में या नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर. This is the base which is there, North India. I guess you are cooking in Calcutta also more or less the same. The oils would change. You would use a different oil, you would use a different oil over there. Maharashtra would use coconut oil, you would use mustard oil. North India, some places they use mustard oil, कहीं पे लोग दूसरा तेल इस्तेमाल करते हैं, sunflower oil, oil. So अगर आपको oil डालना है, अगर आपका मसाला already cooked है, then you, and there are some people who say कि मेरे को तो हम तो oil खाते हैं, हमको बिगर oil का नहीं बना. तो अगर आपको oil खाना है, कम oil डाल सकते हैं, क्योंकि आपका मसाला already cook हो गया. अगर मसाला कुक हो गया है, then you can always use less oil. So recently there was some event that I was doing for AFA and there was discussion about khichdi, masala. Now यही मसाला लेकर के आप मसाला खिचड़ी भी बना सकते हैं. You take this masala, add all the सूखा मसाला that you like, a little bit of थोड़ा इलायची डाल दिया, उसके अंदर लौंग डाल दिया, जो भी गरम मसाले आपके डाल दिए, थोड़ा and when you add the other सूखा मसाला, make a nice paste. एक बार वो पेस्ट तैयार हो गया, उसके अंदर चावल को लेकर के जो हमने 10-15 मिनट 10-12 मिनट तक उसको गीला करके भिगा करके सोख करके रखना, वो आप चावल डालें. अब चावल सपोज आपने 1 कटोरी चावल डाला और आधा कटोरी ये मसाला डाला हुआ है, तो नॉर्मली चावल को पकाने के लिए 1 कटोरी चावल 2 कटोरी खाएं, बट दिस मसाला है वो मोर और लेस लिक्विड. तो आप क्या करेंगे, 2 कटोरी पानी डालने की जगह 1 कटोरी चावल 2 कटोरी डालने की जगह आप 1.5 कटोरी से थोड़ा ज्यादा पानी डालें. So about 1.5 कटोरी या little more, because the masala has got enough moisture to cook the rice. और आपने राइस को सोक करके रखा है 10-12 मिनट, तो the rice has soak a lot of water. राइस खुद पानी भी थोड़ा सा सोक कर लेता है. मसाला चावल बनाना है तो दिस इज हाउ यू डू इट. मसाला खिचड़ी बनाना है तो यू ऐड द दाल टू इट. इफ यू एडिंग दाल, अगर आप दाल ऐड कर रहे हैं तो नेचुरली ऐड अ लिटिल मोर वाटर, सो the proportion of the water would change and you would make it about 2 cups. तो इसका मसाला खिचड़ी भी बन जाता है, मसाला भात भी बन जाता है. अगर आपको चाहिए इसके अंदर थोड़ा साउथ, यही मसाले को थोड़ा साउथ लेके जाना है, तो ऐड कड़ी पत्ता है, कोकोनट, so you taste like a South Indian मसाला. तो एक ही मसाला जो बेस है, आप उस बेस को कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी यही मसाले के बारे में हम लोग क्लास सेशन में बात कर रहे थे, तो किसी का सवाल था कि ये मसाले के साथ में क्या हम चिकन बना सकते हैं. तो बेसिकली चिकन बनाने के लिए तो यही होता है मसाला. आप थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, उसके बाद में हमारा ये जो मसाला है प्याज टमाटर अदरक का सकता है वो डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे, उसके अंदर आप धनिया डाल देंगे फ्रेश. then you can add the chicken to this. आप चिकन को इसी मसाले में अच्छे से कुक कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के क्या करना है. Now जब आप ये मसाला बनाते हैं, एक तो प्याज टमाटर का जो थिकनेस है वो तो इसके अंदर रुक जाता है, क्योंकि आपने इस मसाले को स्लो पे बनाया है. जो हमारा ऑप्टीटेंट है उसके वजह से ये मसाले का जो कुकिंग है दैट बिकम्स इवन. जो लीड है, लीड की वजह से देयर इज नो गैप, द स्टीम इज नॉट एस्केपिंग. तो अगर कोई स्टीम बाहर नहीं जा रहा है, अगर कोई भाप जो है वो बाहर नहीं निकल, तो जो भी प्याज टमाटर के अंदर जो विटामिन है, तो उसका गुडनेस है, वो आस्ते 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 अंदर ही ले जाए. एंड वो मस्टर्ड कुकिंग के साथ में ये खाना बन सकता है. बिकॉज आपने क्या किया, खाली 2 चम्मच पानी डाला, 2 चम्मच पानी के अंदर इट इज टू स्टार्ट द प्रोसेस, स्टीमिंग को स्टार्ट करने के लिए 2 चम्मच. बाकी प्याज और टमाटर का जो जूसेस है वो खाना उसी में पकड़. अब ये मसाला जब तैयार हो गया, तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टमाटर और द अनियन विच इज देयर.
and sorry, Kumar, you want to say something? I got a call. थोड़ा सा मतलब लाउड बोलेंगे तो बेटर होगा, मतलब द वॉइस इज अ लिटिल बिट Okay. So I'll come a little close and talk. You can hear me better now? या इट इज बेटर. Alright. I am in a closed room, but this is the best microphone that I have. Am I audible right now? Is my audio okay now? यस यू आर ऑडिबल. Okay. यस इट इज ओके. Okay. So जब भी आप मसाला ये बनाते हैं तो उसका गुडनेस जो है वो तो उसके अंदर रह गया. दैट्स थैंक यू राकेश कुमार, थैंक यू. सो अगर इसके बाद में अगर इसके अंदर आप सब यू डिसाइड टू टेक गोभी, आपने इसके अंदर गोभी काट करके डाल दिया, आलू गोभी बना, तो ये मसाला किया उसमें आलू गोभी डाल दिया, ढक्कन बंद. द सेम प्रोसेस दैट हैड हैपेंड, जो प्रोसेस हुआ था प्याज टमाटर के मसाले के साथ में, आलू गोभी के साथ में भी प्रोसेस वही रहेगा. और क्योंकि वो प्रोसेस वही रहेगा, आपका ऑप्टिकैप जो है वो मैक्सिमम हीटिंग देगा पूरे एरिया के अंदर. एंड बीइंग द काइंड ऑफ स्टील एंड द मल्टी ईयर्स दैट वी हैव, इसके वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है वो सिर्फ बॉटम में नहीं होगा, उसके साइड में. सो द हीट नाइसली ट्रांसफर्स टू ऑल फ्रॉम द बॉटम टू द साइड. आपका कुकिंग जो है वो चारों तरफ से होता है. जो भी भाप बन रही है, भाप जाकर के लीड को लगेगी ऊपर और फिर वापस नीचे आएगी. So nothing is escaping. Minimum amount of steam escapes. तो जो भी आपका खाने का जो नेचुरल जूसेस है, जो उसका वैल्यू है खाने का, वो सब उसके अंदर ही मिल जाता है. That is the great part of using this. I have been using this for the past 3 years now, approximately a little more than 3 years. हमारे घर में और कोई बर्तन नहीं है. हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्तन जो है हमारे जो है वो खत्म हो गए. बिकॉज हमारे को एक चीज रियलाइज हुआ जब हम लोग किसी और बर्तन में तो बनाते हैं खाना, देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लेवर. आज दोपहर को मेरे घर में भिंडी बनी, एंड भिंडी इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. वो आज भी लोग पूछते रहते हैं कि भिंडी कैसे बनाते हो जीरो ऑयल के साथ. आई विल टेल यू दैट. तो हमारे घर में आज भी भिंडी बनी थी. एंड माय मदर इन लॉज नेबर, शी स्टेज वेरी क्लोज बाय, वो आए थे खाने के लिए. एंड शी वाज सेइंग द भिंडी टेस्ट डिफरेंट इन योर हाउस. ये जो है भिंडी टेस्ट डिफरेंट, आलू गोभी टेस्ट डिफरेंट, और सम मटन टेस्ट डिफरेंट. द रीजन इट टेस्ट डिफरेंट इज बिकॉज उसका जो नेचुरल जूसेस है, जब आप खाते हो आपके मुंह में वो आता है. You can actually taste that vegetable, and that is thanks to both the technologies you have. Main technology being there, the lid, where the lid does not allow, the lid है वो जो ढक्कन है वो allow नहीं करता कि आपका धुआं भाग जाए, आप जो है स्टीम जो है वो भाग. It's to hold better, and that is what makes the food more tastier. Of course, it makes it more healthy, but it also makes it more tasty. The Optitech वजह से, Optitech टेक्नोलॉजी की वजह से आप जीरो ऑयल नहीं कर सकते, कम में भी कर सकते हो, ज़्यादा में भी कर सकते हो. ऑयल का बेसिकली काम क्या होता है? ऑयल इज बिकॉज ऑयल इज यूज्ड फॉर टू, वन टू कुक योर फूड एंड टू टू कैरमलाइज इट. आपका खाना बनाने के लिए और खाने को भूनने के लिए, ब्राउन करने. तो अगर आप 50% काम आपका जो है वो पानी के साथ में करते हैं, कुकिंग द फूड, देन आप थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, 4 चम्मच होगा, 1 चम्मच आप उसको कैरमलाइज कर सकते हैं. अगर 1 चम्मच में इतना खाना बन जाता है कि 4 आदमी खा सकते हैं. Earlier 4 people were going to use 4 tablespoons now of oil, now they are going to use 1. So they don't eat 1. So 1 चम्मच will be divided into 4 lesser oil, or you can easily do 0 oil. भिंडी with 0 oil. तो हम लोग क्या करते हैं, भिंडी को एक बार धो लिया, धो करके सुखा लिया. वेरी इंपॉर्टेंट, आप भिंडी को पोंछ. अगर भिंडी में ऊपर पानी लगा रहेगा then वो थोड़ा सा चिपकता है. You cut it however you want it, lamba, round, however you like to cut it. As soon as you put the bhindi, don't close the lid first. आप भिंडी डालो ठंडे बर्तन के अंदर, फिर उसका गैस चालू करेंगे आप, या जो भी आपका हीटिंग सिस्टम है तो स्टार्ट करेंगे. कीप इट ऑन मीडियम. मीडियम इज समथिंग दैट यू हैव टू. मीडियम इज हाई. वी डू नॉट गो अबव मीडियम एनी टाइम. तो मीडियम जो है कुकवेयर के लिए इज हाई.
सो मीडियम पे आप डालोगे, भिंडी रख दिया उसके अंदर, एंड आप भिंडी को थोड़ा सा हिलाना शुरू करेंगे। साथ साथ में जो मसाले डालने हैं वो डालने की तैयारी करके सबसे पहले आप इसमें नींबू डालें, नींबू का पानी। तो जैसे आप लाइम जूस डालते हैं इसके अंदर तो नींबू सॉफ्ट एंड देन यू ऐड योर मसाला, भून लो उसको थोड़ा सा, एंड जब वो अच्छे से भून जाए दैट इज व्हेन यू क्लोज द लिड। बट व्हेन यू क्लोज द लिड लीड को बहुत देर तक बंद नहीं रखो, दिस इज जस्ट भिंडी डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टू, उसको बहुत देर तक रखना है। एक दो बार बीच में उठा करके भिंडी को आप थोड़ा घुमा दीजिए। अब यहाँ पर लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि अगर आप लीड को उठा लेंगे तो जो भी न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक लीड बंद था तब तक वो न्यूट्रिशन अंदर ही अंदर अपने ही जूसेस में पकड़ा है। आप अगर उसको उठा भी लेते हैं न्यूट्रिशन को ऐसी चीज की जो एक फ्रॉग की तरह जंप करके बाहर चले जाएंगे। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ डाला नहीं, सीधे जूसेस में ही उसको पकाया। तो द न्यूट्रिशन विल स्टे इन इट बिकॉज़ इट इज कुक्ड इन इट्स ओन जूसेस। और आप उठा रहे हैं उसको नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप उठा रहे हैं उसको जस्ट टर्न इट अराउंड, एक बार थोड़ा सा उसको लपेट लें एंड देन यू पुट इट बैक। तो आप उसको स्टर किया फिर वापस कर दिया। So this is how the भिंडी happens. The नींबू is the key to making भिंडी। अगर नींबू डाल दे तो उससे भिंडी का टेस्ट। So we can start taking questions, or if you want any recipes, you can ask me questions. तन्मय कुमार। Yeah, chef. So actually, they cannot ask you directly because they are muted. Yeah. So they can type in. If there are any questions, I will take 1 or 2 questions. Or is there anything you want me to speak about? There are few things. By the time the questions are coming, there are few questions that are normally asked. So I just answer this. बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम होता है कि मेरा बर्तन काला हो गया, ब्राउन हो गया, जल गया, रेनबो कलर आ गया उसके अंदर। For any of these things that happen to you, इसके अंदर chef, can you please repeat okra recipe? Yes, I will. Give me a minute. So अगर आपका बर्तन काला हो गया है, ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा जल गया है, रेनबो जैसे कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, all you have to do is take बेकिंग सोडा एंड यू हैव टू टेक सम एलओसी, एंड एलओसी के साथ में बेकिंग सोडा लगा करके उसको आप हीट कर। अगर आपके पास में एलओसी नहीं है घर में, बाय इफ यू डोंट वांट टू बाय देन यूज विनेगर, व्हाइट नॉट दैट। तो व्हाइट विनेगर और बेकिंग सोडा डाल करके उसको साफ कीजिए, साफ हो जाएगा। नेवर यूज स्टील वुल टू कुक दिस। For the recipe of the okra, the recipe of the bhindi, somebody asked me to repeat it. So what we do, how we do it, is we cut the bhindi down normally. उसको हम लोग ठंडे बर्तन में डालते हैं, गैस ऑन करते हैं मीडियम हीट के ऊपर, उसके अंदर नींबू का रस डालते हैं, उसको अच्छे से ये मिक्स करने के बाद में उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, वी लेट इट कुक फॉर सम टाइम। ये ढक्कन थोड़े थोड़े देर में हम उठाते हैं, उसको मिक्स करते रहते हैं, सो दैट नीचे जो भिंडी गर्म हो गई है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली so that the cooking temperature keeps on remaining the same. You will not lose nutrition because of this, because the भिंडी is yet cooking in its own juices. अगर आपको लग रहा है कि भिंडी से थोड़ा चिपक रही है, then add a few drops of water of few tablespoons of water and close the lid. After that जो भी सूखे मसाले होते हैं आपके, तो we put धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा हरा धनिया and green chili. This is what we do. तो ये सब चीज़ें मोस्टली एक साथ में ही जाती है, एंड उसको हम मिक्स करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ी देर में ढक्कन उठाया मिक्स किया, एंड देन फॉर सम टाइम वी कीप इट ओपन सो दैट द भिंडी डजंट स्टिक टू ईच अदर। एक बार भिंडी थोड़ा सा चिपकना छोड़ देगी बिकॉज़ ऑफ द नींबू एंड द हीट व्हिच इज देयर, देन यू कैन क्लोज द लिड, कुक द भिंडी, दैट्स इट। भिंडी का रायता भी बनता है, देन फॉर दैट यू हैव टू कुक द भिंडी कंप्लीटली एंड देन मेक अ रेगुलर दही का रायता एंड देन ऐड द भिंडी ऑन टॉप। पूरी भिंडी का रायता भी बनता है, बट दैट इज डीप फ्राई। सो इन केस यू वांट टू डू डीप फ्राइड, आप डीप फ्राई करके भिंडी को भी कर सकते हैं, उसका रायता भी। तो एनी मोर क्वेश्चन?
I got one question before regarding the review. Chef, there is a question like how long they can keep this masala, cooked masala? कितने दिन तक preserve करके रख सकते? See, I normally keep it for 2 weeks at home, frozen. And how I keep it, 2 हफ्ते के लिए रखता हूँ मैं फ्रीजर के अंदर. बट हाउ मैं उसको रखता कैसे हूँ कि मैं आइस का जो ट्रे होता है, ये मसाला बना करके मैं आइस के ट्रे के अंदर क्यूब्स की तरह आइस जैसे जमाते हैं, वैसे ये मसाले को क्यूब्स की तरह बना करके आइस ट्रे में डाल के अंदर रखता हूँ. And my way of using it is, if I'm cooking for 2 people, I will use 2 cubes, and my cubes are big. So each cube would be approximately 70 grams, approximately. So if I'm using cooking for 2 people, I'll use 2 cubes. If I'm cooking for 3 people, I'll use 3 cubes. If I'm using 4 people, I'll use 4 cubes. So 8 cube for 1 person. This is how I use it. And there are 8 cubes, तकरीबन 70 grams का, more or less. So, any more questions regarding this masala? I can talk about it. Also, if this masala, if you want to make it more rich, आप इसके अंदर काजू पेस्ट डाल सकते हैं. तो काजू को लेकर के गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए. उसके बाद में उसका पेस्ट बना लीजिए. And then you can add this to the paste. So make the paste more richer. More or less like butter. Any more questions? No, there are no more questions yet. So what I'll do is, thank you very much. I hand this over to Kumar. Kumar da. Okay. So thank you so much, Sanjay ji, for joining today. সঞ্জয় জি আজকে সকালবেলা মানে আজকে সকালবেলা বলবো না তিন দিন মতো আগে আজকে সকালেও আমাদের মিটিং হয়েছিল যে মিটিংটা নিয়ে হি ইজ অলওয়েজ ভেরি ভেরি এক্সাইটেড কারণ মানে আজকের এই প্রোগ্রামটা আমরা সাশ্রয়ীর জন্য করছি বিকজ মানে আপনারা জানেন হয়তো অনেকে জানেন অনেকে যারা নতুন তারা হয়তো নাও জানতে পারেন যে আমাদের এই যে সেটগুলো আমরা ইন্ডিয়াতে নিয়ে এসেছি এই সেটগুলোর পেছনে এবং তার পাশাপাশি আমরা যেগুলো নতুন সেট লঞ্চ করতে চলেছি আর হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেই সেটগুলোকে সিলেকশন করা থেকে শুরু করে মানে ধরুন আমাদের তো প্রচুর ভ্যারাইটি আছে কারণ আমরা গ্লোবালি প্রচুর দেশে এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করি মানে কিছু যেগুলো আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিজ রয়েছে এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলোতে অ্যামবে কুইনের নামে বিক্রি হয় আর আপনি যদি আমেরিকা নর্থ আমেরিকা ওই সাইডে চলে যান তাহলে সেগুলো আইকুকের নামে বিক্রি হয় এবং এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো কিন্তু মানে প্রচুর ভ্যারাইটি রয়েছে এবং সেই প্রচুর ভ্যারাইটির মধ্যে থেকে ইন্ডিয়ার জন্য কোন প্রোডাক্টগুলো সুটেবল তো সেইটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা স্পেসিফিক টিম রয়েছে সেই টিমের মধ্যে সঞ্জয় জি যেরকম ফ্রম ডে ওয়ান রয়েছেন সেরকম ভাবেই শাশ্বতী দিও রয়েছে তো সেজন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা এন্ড করার আগে আই উড লাইক টু ইনভাইট আওয়ার ফাউন্ডার্স ইডিসি লিডার শাশ্বতী দিকে আমি ডেকে নেবো কিছু পয়েন্ট বলার জন্য আর শাশ্বতী দিকে হ্যান্ড ওভার করার আগে একটাই কথা বলবো যে আমিও কিন্তু প্রচন্ড আজকে খুশি হয়েছি বিকজ আই কুড কানেক্ট উইথ দিস টিম বিকজ আপনারা সবাই জানেন যে কত ক্লোজলি আমি এই টিমটার সাথে কাজ করেছি মানে আই রিয়েলি মিস দোজ ডেজ নর্থ কলকাতা সাউথ কলকাতা মহাজ্যোতি সদর আমরা প্রচুর কাজ করেছি একসাথে এবং প্রচুর ইভেন্টস করেছি সো ওভার টু ইউ শাশ্বতী। Hello. First of all, Sanjay ji. Sanjay ji, can you hear me? Yes, ma'am. How are you? Fine. How about you? I must tell everybody one thing. I've always enjoyed your being a host, and you serve fantastic food at your place. And the last time you had sent me that vegetable. I am very grateful. Thank you very much. Okay. So actually मैं सबके क्योंकि संजय जी बांग्ला नहीं समझेंगे इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बात करना चाहूँगी मेरे टीम के साथ भी कि संजय is always a very good friend of ours. आज से ही जब से टीम का हमारा टीम बना है we have traveled together to Thailand and to Bangalore and so many places. एकदम right day one से लेके आज तक right pieces बुनना सब आपके लिए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो भी हम लोगों ने एक साथ निकाला कि कौन सा चाहिए हमें इंडिया के लिए उसके बाद कौन सा कुकिंग कैसे होगा कुछ इवन आज जो मैं थोड़ा बहुत कुक कर भी लेती हूँ
उसके पीछे भी संजय जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज एक्चुअली आई वाज नेवर अ गुड कुक, मैं कभी कुक करती नहीं थी, लेकिन आज क्वीन आने के बाद से मैं बहुत कुक करती हूँ और आई एंजॉय रियली कुकिंग। और अभी तो मेरा अपना पेज भी हो गया है, कुकिंग क्वीन, ओके, तो इसमें बहुत सारा हम लोग रोज अच्छा अच्छा खाना भी डालते हैं। ऑल आर गेटिंग क्वीन ओनली, और क्वीन में क्या कुछ नहीं बन सकता, मतलब ये मतलब अभी तो सबको लगता है कि हम लोग कुछ भी घर में अगर एक क्वीन रहे तो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अभी तो लास्ट कब माइक्रोवेव यूज हुआ, कब ओटीजी यूज हुआ, कब कुछ नहीं हुआ। केक से लेके, पुडिंग से लेके, मोमो से लेके, रोटी से लेके, चावल से लेके, बिरयानी से लेके, एवरीथिंग वी आर कुकिंग इन क्वीन। पहले पहले हम लोग बंगालीज का बहुत डर था कि क्या हम लोग का फिश, हम लोग इतना ऑयल खाते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्या फिश हम लोग बना पाएंगे क्या नहीं, पर आज तो हम लोग फिश भी बना रहे हैं और इतना टेस्टी बन रहा है। और सिर्फ बंगाली वाला फिश नहीं, मैं आई ऑलवेज ट्रैवल टू असम एंड अरुणाचल, उन लोगों का उधर भी फिश बहुत चलता है, तो एटमिस फिश, अरुणाचली फिश सब हम लोग बना के देख चुके हैं एंड इट्स रियली टेस्टी। तो आज का जो सेशन था हम लोग सीखा कि कैसे स्पेशली तो वर्किंग वुमेन, वर्किंग मदर थोड़ा एक साथ मसाला बना के हम लोग 2 हफ्ता तक रख सकते हैं। ठीक है, आपने बताया इतना, मैंने याद कर सकती हूँ कि 700 ग्राम प्याज के साथ 300 ग्राम टमाटर और 100 ग्राम के अंदर आपका गार्लिक एंड और सॉरी आपका जिंजर पेस्ट होना चाहिए, और इसको एक साथ रख सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा चाहिए तो हम तो उसका रेशियो बढ़ाना बस, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बांग्ला में भी कर सकते हैं, तो आई कैन आस्क इट टू संजय जी इन हिंदी और इंग्लिश। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो बिकॉज सेलिब्रिटी है, उनको बहुत सारा नॉलेज है, तो आज हमको उनसे वो मिल सकता है। सो एनी क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज अच्छा, एक किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओक एंड द क्वीन। एक्चुअली क्वीन का ये हिस्सा है बट लेयर अलग है, तो थोड़ा अगर कोई भी घुमाव या तन्मय या किसी पर आप के ऊपर अदरवाइज आई कैन आल्सो सेड, बट since you are there I think people would love to listen to you कि ओक और क्वीन में फर्क क्या है। I'm sorry, I couldn't hear you. ओक और क्वीन मतलब हमारा जो 5 पीसेस का जो सेट है क्वीन का, उसका और ओक हमारा जो बड़ा सा कढ़ाई है, दोनों में एक्चुअली मटेरियल के हिसाब से देखें तो इसमें 7 लेयर्स है और इसमें 3 और सॉटे पैन में 5 बॉटम लेयर है। बट मेरा कहना ये है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसका खाना ओक पे ज्यादा अच्छा पकता है। See, basically जो काम हम लोग कढ़ाई के अंदर करते हैं, wok is for that. Plus the wok also comes with the steaming rack. Wok जो इसमें steaming rack भी आता है, तो wok is good for steaming also. Wok is good for doing anything in a कढ़ाई with a larger quantity. Okay. So it's not that if I want to make sambar, I will not make sambar in the wok. I can make sambar in the wok also. And because it is a larger utensil, क्योंकि वो बर्तन बड़ा है, तो उसका heat retaining requirement भी वैसे ही है. So that is why the wok is for 7 ply, because it can retain heat for a much longer time. Now, if you are deep frying, definitely that is एक advantage है कि आपका oil जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए hot रहेगा. But suppose आप deep frying का बात नहीं भी करते हैं, wok के अंदर I was in South India in somebody's house very recently in Chennai, and वहाँ पर उन्होंने cabbage का पोरियर बनाया था. So we have South Indian take cabbage. So what they do is a very simple recipe. They take lot of cabbage, they cut it and they put it in any burden, and it is nearly till the top. ऊपर तक भर देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का वो डाल करके फ्रेश कुकर, and they put जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची and a very little हल्दी, उसको डाल करके मिक्स करके they close the lid and slow flame के ऊपर उसको पकने देते हैं. They don't even add water. When they did that in the wok, I was surprised. They were also surprised that how fast it could cook, because इतना सारा wok में भर दिया, उतना heat भी बहुत ज़्यादा था, and the food was tasting much better. So whether you are cooking it in wok or whether you are cooking it in the regular ambient cookware, quick cookware,
the flavors don't get disintegrated in any way. Wok के अंदर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं and the profile of the wok is such that you can also do, besides doing larger amount of cooking, everything can get hold the nutrition. So wok is basically used as a कढ़ाई. आपको ज़्यादा खाना बनाना है, घूम के खाना बनाना है. There are many dishes where we need our बर्तन to be wide so that हमारा करछी अच्छे से चल सके. So basically wok is something जो आपकी कढ़ाई की जगह पे आप यूज करें. So whatever you cook in a कढ़ाई you cook in a कढ़ाई. And I think With the added advantage of the steam. हाँ, बिरयानी पुलाव ये भी थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है वो में ना. Anything. कोई भी दम में जो बनता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है. Okay, so that was another one question. Any other question? Otherwise, Tanmay, it's over to you. And thank you so much, Sanjay. Thank you. My pleasure, man. Yeah, thank you. Thank you, Thank you, Tanmay. ma'am. Thank you, Kumar, for taking out his important, time and helping us doing this event. Thank you, Sanjay, Chef Sanjay. As usual, it was pleasure having you. We'll keep looking forward to have you in the cooking community events as well, because मैम के साथ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, and we invite you for that with ma'am's permission. ठीक है, हमारा cooking competition में आपको It's a pleasure, always. The moment lockdown will be over, we can So always do that. Yeah. Thank you, ma'am. So with that, ma'am, thank you all for logging in, and we say goodbye from our end. Thank you. Bye. Bye. Thank you.